Morning students, I hope all of you are doing your homework time to time. In last lecture, we have discussed what is compound interest and what is simple interest. All of you know about it. And in this lecture, we are going to solve some examples based on compound interest. Here, first example is the simple interest on the sum of money for 2 years at 12% per annum is 1380 rupees, and find the sum of the money and the compound interest on this sum for 1 year payable half yearly at the same rate. Clear? So whatever we have given, simple interest is given here 1380 rupees and rate of interest is 12% per annum and time is equal to 2 years. So first we need to find out the sum of the money. So suppose that sum of the money is P, and apply the formula here. Simple interest is equal to PRT upon 100, and here value of simple interest is given here 1380 rupees, and P is the sum of the money. We have supposed that it is P, so P as it is आएगा into R. R is 12% into T is 2 divided by 100, and solve it. We get that P is equal to 5750 rupees. It is the sum of the money. Now we need to calculate the compound interest on this sum of the money when interest is counted half yearly. Clear? So interest is counted half yearly. This mean interest is payable 2 times. Why? Because interest is compounded. Compound means interest on interest. Clear है? Since the rate of interest is given here 12%, so 12% per annum. Rate of interest is given here 12% per annum, and we need to pay the interest half yearly. So rate of interest given annually एंड वी नीड टू पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करेंगे या फिर टाइम को हाफ कर लेंगे, कुछ भी एक हाफ करेंगे. क्लियर है? सो हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ किया. सो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फॉर फर्स्ट हाफ ईयर. प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इट विल बी 5750 रुपीज़, एंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इट विल बी PRT अपॉन 100. फॉर्मूला अप्लाई करें एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ PRT. P is the principal amount for first half it is 5750 rupees into R means 6%, 6 आ जाएगा into 1 time divided by 100. Solve it and you will get 345 rupees. It is the interest for first half year. So amount after first half year it will be principal amount plus interest. After first half year it will be 5750 plus 345 rupees. It is 6095 rupees. It is the amount after first half year. And now we will discuss for second half year. And for second half year principal amount it will be 6095 rupees, and interest for second half year apply the formula PRT upon 100 and putting the value of P, R and T. Value of P is 6095 rupees for second half year, and R is same 6% into T is 1 divided by 100, and after solving it we get the interest for second half year it will be 365.70 rupees. Clear? So compound interest on the above sum for first year it will be, अगर दोनों ईयर्स के इंटरेस्ट को हम सम कर देंगे तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर हमने दोनों ईयर्स के इंटरेस्ट को सम किया. इट इज़ 345 प्लस 365.70 रुपीज़, एंड टोटल हुआ 7710 रुपीज़ .70. क्लियर है? सो it is the compound interest after 1 year it is 710.70 rupees. क्लियर? इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया था? फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. तो दोनों मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो हम अगर 2 ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो दोनों ईयर्स के जो सिंपल इंटरेस्ट आया है उन्हें सम करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. अदरवाइज फाइनल अमाउंट से जो इनिशियल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट था उसे हम माइनस करेंगे तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन इन्वेस्ट 10,000 rupees for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year this sum amounts to a rupees 11,200. Calculate the rate. We need to find out the rate of interest per annum and the amount at the end of second year. Clear है? So whatever we have given, principal amount is 10,000 and amount after first year it is given here 11,200. प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर इज 11,200. सो कुछ इंटरेस्ट लगा होगा तभी तो
एक 1 ईयर के बाद अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइनल अमाउंट मीन्स जो आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट है 11,200 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, इट इज 1,200 रुपीज. इट इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. क्लियर है? एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट. सो सपोज दैट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज R% per annum, and here we will apply the formula. Interest for first year it is PRT upon 100. Putting the value of P, R and T. Value of P is principal for first year it is 10,000. R हमने सपोज किया है R% रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज R% एंड T इज 1 एंड डिवाइडेड बाय 100 एंड वी हैव कैलकुलेट ऑलरेडी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 1,200 रुपीज़ एंड सोल्व इट. यू विल गेट R इज इक्वल टू 12%. क्लियर है? अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर. इंटरेस्ट इज काउंटेड, इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तब हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज 11,200 होगा. फर्स्ट ईयर के बाद जितना अमाउंट होगा वही तो सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है. तो फर्स्ट ईयर के बाद कितना गिवन है? अमाउंट 11,200. सो इट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें यहाँ पर एंड यू विल गेट interest for second year it will be 1,344 rupees and amount after second year it is principal amount for second year plus interest for second year it will be 12,544 rupees. Clear? Next question is here. Find the amount and the compound interest on 2,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 2.5 years कंपाउंडेड एनुअली. यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो एनुअली. सो पहले फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के, और फिर लास्ट 6 months के लिए या लास्ट हाफ ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे. फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज 2,000 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम 1 हो जाएगा. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करो P, R and T का. क्लियर? और सोल्व करो. यू विल गेट 200 rupees. It is the interest for first year and amount after first year it will be principal amount for first year plus interest for first year. It is 2,200 rupees. Amount after first year it will be the principal amount for second year. Clear? So now for second year principal amount for second year it is 2,200 rupees and rate of interest 10% same है, time 1. interest for second year PRT upon 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, वैल्यू पुट करो P, R और T का वैल्यू यहाँ पुट करा, डिवाइडेड बाय 100, सोल्व करके इट इज़ 220 रुपीज. इट इज़ द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. क्लियर है? एंड अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर इट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इट इज़ 2,200 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इट इज़ 220 रुपीज़. दोनों को सम करा तो 2,420 रुपीज़ आया अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर. एंड नाउ वी विल डिस्कस फॉर लास्ट हाफ ईयर. और क्लियर है? सो प्रिंसिपल फॉर 2.5 year और लास्ट हाफ ईयर इट विल बी 2,420 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिएगा यहाँ पर लास्ट हाफ ईयर की बात हो रही है, तो या तो टाइम को हाफ करेंगे या रेट को हाफ करेंगे. क्लियर है? यहाँ पर हमने जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसे हाफ किया एंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 year मतलब लास्ट हाफ ईयर इट विल बी PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो इंटरेस्ट P, R और T का वैल्यू पुट किया और सोल्व करेंगे तो 121 रुपीज़ आया. इट इज़ द इंटरेस्ट फॉर लास्ट हाफ ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 year कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस लास्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट, तीनों का सम करेंगे तो 541 रुपीज़ आया. एंड अमाउंट आफ्टर 2.5 year इट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर last half year it is 2,420 rupees plus interest for last half year it is 121 rupees. दोनों का सम करेंगे 2,541 rupees. क्लियर? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 rupees for 1.5 year at 8% per annum. The interest is being compounded semi annually. Semi annually means हाफ ईयरली. क्लियर है? तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही हाफ ईयर का लेके चलेंगे और 1.5 year की बात है, इसका मतलब 3 हाफ ईयर्स आएंगे. क्लियर है? तो यहाँ पर पहले ही हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हाफ करेंगे. क्लियर है? सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ईयर 8% पर एनम, तो इसका हाफ करना पड़ेगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली दिया होता तो कोई हाफ करने की नीड नहीं था. क्लियर है? तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ किया, इट इज़ 4%. हाफ ईयर के लिए 4% आया. एंड फॉर फर्स्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इट इज़ 5,000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, R and T.
value of P is 5000 into R is 4% into 1 divided by 100, you will get 200 rupees. It is the interest for first half year, and the amount of after first half year, it will be principal for first half year plus interest for first half year. It will be 5200 rupees. It is the amount after first half year. So it will be the principal amount for second half year. तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 5200. इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अप्लाई द फॉर्मूला या पी आर टी अपॉन 100 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर एंड टी एंड डिवाइडेड बाय 100, यू विल गेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर. इट इज 208 rupees. And the amount after first year, it will be principal amount for second half year and plus interest for second half year, it will be 5408 rupees. And for third half year, principal amount for third half year will be 5408 rupees. And interest for third half year, apply the formula of interest PRT upon 100, putting the value of P, R and T and divided by 100, you will get the interest for third half year. It will be 216.32 rupees. And amount of after third half year, it will be principal amount for third half year plus interest for third half year. It is 5624.32 rupees. And compound interest for first and half year, it will be final amount minus original amount. क्लियर है? दोनों को माइनस करा तो यू विल गेट 624.32 rupees. And next question, calculate the amount and compound interest on 5000 in 2 years when the rate of interest for successive years is 6% and 8% respectively. देखिएगा, सक्सेसिव ईयर से मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 6% और सेकेंड ईयर के लिए 8%. क्लियर है? फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट it will be 5000 and rate of interest 6% and time is 1. Interest for first year, apply the formula of interest PRT upon 100 and putting the value of P, R and T. Value of P is 5000, R is 6% into 1 divided by 100, you will get 300 rupees. It is the interest for first year. And amount after first year, it will be principal for first year and plus interest for first year. दोनों का सम करेंगे तो it will be 5300 rupees. It is the amount after first year, so it will be the principal interest for second year. Second year की जब बात करेंगे तो principal interest for second year, it is principal amount for second year is 5300 rupees and rate of interest is given here 8% and time is 1. So interest for second year, apply the formula of interest PRT upon 100, putting the value of P, R and T and solve it. It is 424 rupees. And the amount after second year, it will be principal for second year plus interest for second year, so 5300 plus 424 rupees. दोनों का सम किया तो कितना आएगा? 5724 rupees. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. क्लियर है? फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, इट विल 5724 माइनस 5000 करेंगे तो 724 रुपीज़ आया. इट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. क्लियर है? And next question, the simple interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 1600 and find the amount due and the compound interest on this sum of the money at the same rate after the year. Interest is annually. Clear? So given here, simple interest for 2 years is given here 1600. 2 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1600 है तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा तो इट विल बी 800 रुपीज़. सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 800 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% पर एनम एंड टाइम इज 1 ईयर. सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इट विल बी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट PRT upon 100, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, R and T. So here we need to find out the sum of the money. So suppose that sum of the money is P and apply the formula of interest of for first year PRT is equal to 100. Interest for first year given here 800 rupees is equal to P into 10, value of R is 10 into 1 divided by 100. जब सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू कितना आया? 8000 रुपीज़. इट इज़ द सम ऑफ द मनी. क्लियर है? सम ऑफ द जो भी अमाउंट था. अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, इट विल बी, देखिएगा फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? जो प्रिंसिपल अमाउंट था या जो ओरिजिनल अमाउंट था 8000 प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 800, तो 8000 प्लस 800, इट विल बी 8800 रुपीज़. क्लियर है? फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इट विल बी 8800 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम 1 ईयर. एंड
interest for second year, apply the formula of interest PRT upon 100, putting the value of P, R and T and solve it, it will be 880 rupees. After solve you will get putting the value of P, R and T, P is principal for second year 8,800 rupees, putting the value of PRT and solve it, you will get 880 rupees. It is a interest for second year. Clear? Amount after second year, it will be principal amount for second year plus interest for second year, it will be 9,680 rupees. It is the amount after second year. It will be the principal amount for third year. So अगर थर्ड ईयर के लिए काउंट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इज 9,680 rupees. Rate of interest 10% and interest for third year, apply the formula of interest PRT upon 100. P is principal amount for third year, it is 9,680 rupees into 10 into 1 divided by 100 and after solve you will get 968 rupees. It is the interest for third year and amount after third year will be principal amount for third year plus interest for third year. Principal amount for third year is 9,680 rupees plus इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज 968 रुपीज़. दोनों का सम करेंगे तो 10,648 रुपीज़ एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा? फाइनल अमाउंट इन 3 ईयर्स 10,648 रुपीज़ माइनस इनिशियल या ओरिजिनल अमाउंट 800. क्लियर है? इट विल बी 2,648 रुपीज़. इट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स. क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम बोरो 20,000 फ्रॉम ए बैंक एट 10% per annum simple interest. He lent it to his friend Venkat at the same rate but compounded annually. Find his gain after 2.5 year. उसका गेन हमें फाइंड आउट करना है 2.5 ईयर के बाद. क्लियर है? सो देखिएगा, विक्रम ने कितना बोरो किया? 20,000 पर विक्रम ने बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट पर और अपने फ्रेंड को दिया उसने लेंड पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर. क्लियर है? तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे. विक्रम तो सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर. देखिएगा यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है, यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ नहीं करेंगे बल्कि टाइम का एडजस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टाइम को हाफ कर लेंगे. क्लियर है? तो 2.5 ईयर को लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स. तो इंटरेस्ट पे बाय विक्रम या सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? PRT अपॉन 100, पुटिंग द वैल्यू P, R एंड T. P इज प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 इंटू R इज 10% पर एनम, सो 10 आ जाएगा इंटू टाइम इज 5/2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज़. विक्रम ने 2 साल में कितने पे करेगा? इंटरेस्ट कितने पे करेगा? 5,000. मतलब 20,000 तो ये था और 5,000 वो एक्स्ट्रा पे करेगा, तो कितना हो जाएगा? 25,000 उसे पे करना पड़ेगा. क्लियर है? हमें तो गेन फाइंड आउट करना है. तो अब विक्रम ने क्या किया? विक्रम ने बैंक से लिया और अपने फ्रेंड को कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं, तो उसका फ्रेंड कितना पे करेगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं, या उसका फ्रेंड कितना इंटरेस्ट देगा उसे. क्लियर है? 2 ईयर की बात है, 2.5 ईयर की बात है. तो पहले फर्स्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वैल्यू ऑफ P इज 20,000 इंटू R इज 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. तो कितना हुआ? 2,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए. अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इट विल बी 22,000. अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, इट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर. क्लियर? सेकेंड ईयर की जब बात करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज 22,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला PRT अपॉन 100, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, R एंड T. P इज 22,000 इंटू R इज 10% इंटू T इज 1 डिवाइडेड बाय 100. इट विल बी 2,200 रुपीज़ एंड अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर इट विल बी 22,000 प्लस 2,200 रुपीज़, इट विल बी 24,200 रुपीज़. इट इज़ द अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर. एंड फॉर लास्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 24,200 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. यहाँ पर हम टाइम को हाफ ले रहे हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर है? अगर 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ कर सकते हैं या टाइम को हाफ कर लें. हमने टाइम को हाफ किया है, तो इंटरेस्ट फॉर लास्ट हाफ ईयर इट विल बी PRT अपॉन 100. वैल्यू ऑफ P इज 24,200 इंटू 10 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 100. सोल्व करेंगे तो 1,210 रुपीज़ आया एंड अमाउंट आफ्टर लास्ट हाफ ईयर इट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर लास्ट हाफ ईयर इट विल बी 24,200 प्लस इंटरेस्ट फॉर लास्ट हाफ ईयर इट इज़ 1,210 रुपीज़. दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,410 रुपीज़. इट इज़ द अमाउंट आफ्टर
2.5 ईयर, क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर इट विल बी फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, इट इज़ 5410 रुपीज़। देखिएगा जो उसका फ्रेंड पे करे, वो इंटरेस्ट देगा, वो देगा 5400 और उसने कितना इंटरेस्ट दिया था 5000। तो दोनों के इंटरेस्ट को या कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे तो टोटल गेन आ जाएगा। तो गेन कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जो विक्रम का फ्रेंड पे करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एडिशनल, मतलब जो टोटल मनी लिया था उसने विक्रम से, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। तो इंटरेस्ट को ही सम माइनस कर दें बस। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5410 रुपीज़ माइनस 5000, जो एक्स्ट्रा उसका फ्रेंड देगा और जो एक्स्ट्रा विक्रम देगा, दोनों को माइनस करा तो 410 रुपीज़ विक्रम के पास बच जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर दुबे बोरोज 6000 from State Bank of India at 5% compounded interest. If he repay 1200 at the end of each year, find the amount outstanding at the beginning of third year. क्लियर है। मिस्टर दुबे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6000 रुपीज़ बोरो किए 5% पर एनम पर, 5% पर एनम पर। क्लियर है। अगर वो हर साल, हर ईयर के एंड में 1200 रुपीज़ पे कर देता है, तब उसे जो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उसे कितना उसके ऊपर बचेगा, मतलब कितना रिमेनिंग रह जाएगा उसके ऊपर। क्लियर है। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज 6000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो P का वैल्यू 6000 इंटू R इज़ 5% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना है 300 रुपीज़। इट इज़ द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर इट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इट विल बी 6300 रुपीज़। इट इज़ द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब जो अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अमाउंट कितना पे कर रहा है 1200 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर के लिए कितना प्रिंसिपल होगा उसके पास, तो जितना फर्स्ट ईयर में एंड था, फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना था 6300 रुपीज़ और पे कितना किया 1200 रुपीज़। तो अभी उसे 6300 रुपीज़ और देना है, उसने पे किया 1200 रुपीज़। तो दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा जितना अभी उसे और पे करना है। तो कितना है 5100 रुपीज़, इतना अभी और पे करना है उसे। क्लियर है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इतना मनी हुआ, तो ये ही तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज 5100 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर PRT अपॉन 100. So value of P is 5100 into R is 5 into 1 divided by 100. It will be 255 rupees. It is the interest for second year, and amount after second year it will be principal amount for second year 5100 plus interest for second year it is 255 रुपीज़। दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5355 रुपीज़। क्लियर है। एंड अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना पेड किया उसने 1200 रुपीज़। सो कितना भी सबमिट करना उसे 5355 और पे कितना कर दिया 1200। तो रिमेनिंग कितना बचा, दोनों को माइनस करेंगे तो 4155 रिमेनिंग बचा। यही तो होगा 300 जो थर्ड ईयर है उसके बिगनिंग में जितना मनी बचेगा वो होगा 4155 रुपीज़ और उसे पे करना है। क्लियर है। थैंक्स। ये कुछ होमवर्क है, आप कर लेना। कोई भी क्वेरी हो, कुछ हो, यू कैन आस्क। क्लियर है। थैंक यू।